Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting, and the topic which you are learning right now is liquidation of company. Chalo, let's read the problem, understand the problem and then start solving the problem. This is the fourth problem. TM Limited went into the liquidation on 31st March 2017. The balance sheet as on 31st March 2017 is given below. Equity share, preference share. देखो इस बार दोनों shares है, equity भी है, preference भी है. Security premium 5%, debentures, interest on debentures, bank overdraft, creditors. Freehold property, plant, motor vehicle, stock, debtors, profit and loss account. The preference dividends are in areas for 2015, 16, 16, 17. से 2 साल का preference है. This is called as contingent liability. The company articles provide that on liquidation, out of surplus asset remaining after the payment of liquidation costs and outside liabilities, it shall apply first towards the areas preference dividend. देखो कंपनी का आर्टिकल क्या बोल रहा है, आपके पास जो भी सरप्लस एसेट होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देने के बाद, बाहर वालों का लाइबिलिटी देने के बाद जो बचेगा, पहले आपको प्रेफरेंस एरियस डिविडेंड देना है. सेकेंडली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना विद द प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर. पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे देना है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ₹10 के प्रीमियम के साथ पेमेंट, एंड फाइनली एनी रेसिडुअल शैल बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर. फिर अगर बचा कुचा कुछ पैसा है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा. द लिक्विडेटर रियलाइज द फॉलोइंग. नाउ से हम ये फटाक से कॉपी कर सकते हैं टू ऑल द एसेट्स, क्योंकि ये हमें पैसा मिल रहा है, तो आई विल राइट हियर टू एसेट्स. assets realized. Okay, तो assets realized. Now see, asset क्या बोला है, the liquidator realized the following assets. ये सब पूरा asset उसने realize किया. So I'm writing here. And what was the amount of realization? I'll just copy paste it so that while taking it I am not making any mistakes. So I'm putting all the figures here. Correct. Freehold property का 14,25,000, ये सब हमें पूरा asset realized हो गया. Okay, this is the asset realized value. Okay, to asset realized, so much asset. We can do this totaling also. हमें कितना asset realized हुआ है. Okay, but not read it right now. Okay, the creditors were paid less 5% discount. Debentures holders were paid along with the interest up to 30th June. सिर्फ 30th June तक आपको debentures holders को interest देना है. Creditors are paid that much. Liquidator remuneration is 2% of asset realized and cost of liquidation is 7640. Prepare the liquidation. So इस बार बहुत सिंपल है. इस बार कमीशन एंड ऑल में कॉकटेल दिया ही नहीं है. क्या बोला है सीधा, जितना पैसा, यानी कि ये जो टोटल है आपको उसी के ऊपर 2% कमीशन मिलेगा, और आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट दिया है 764. सो हम लोग सीधा कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज 7640. कमीशन अभी मैंने आपको बोला था, यू कैन डू द टोटलिंग ऑफ इट. चलो विल डू द टोटल ऑफ इट फटाफट. 14,25,000 प्लस 5,05,000 प्लस 1,18,000 प्लस 3 lakhs plus 1,20,000. Correct? So total is coming to 24,68,000. I can write it here total, no problem. 24,68,000, and I'll just color it off so that you come to know this is a totaling of real asset realized. So I can write here, okay, total
assets. Total asset realized. ओके, टोटल एसेट रियलाइज. अब इस पे आपको क्या बोला है, 2% कमीशन, तो इनटू 2%. ओके, so directly it is coming to 49,360. So your commission is coming to 49,360. सिंपल था इस बार, कमीशन बहुत सिंपल था. देखो सिंपल ही बोला है. लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन इज 2% ऑन एसेट रियलाइज. तो ये एसेट रियलाइज है, उसका हमने 2% ले लिया. लिक्विडेशन एक्सपेंसिव. नाउ क्रेडिटर्स आर पेड. नाउ यू नो इट हाउ, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट. आफ्टर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यू आर गोइंग टू पे द डिबेंचर्स होल्डर्स. After debentures holder, you're going to pay debentures interest. After debenture interest, you are going to pay creditors. ये आपका सीक्वेंस मैंने आपको बताया था. ओके, नाउ विल गो अलोंग विद द प्रॉब्लम. नाउ प्रॉब्लम के अंदर क्या था, सबसे पहले देखो आपके पास क्या क्या है. यस, सिक्योरिटी है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सन्ड्री क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो आपके दो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज है, बाय क्रेडिटर्स और बाय बैंक ओवरड्राफ्ट. ये आप पेमेंट कर दोगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके, नाउ आपको किसी ने कुछ कंसेशन दिया है. नाउ लेट्स रीड द, अरे यहाँ पे नहीं है प्रॉब्लम, इधर क्वेश्चन इधर है. प्रेफरेंस शेयर्स आर्टिकल्स प्रोवाइड दैट, हम लोग को ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आपको सिर्फ क्रेडिटर्स ने 5% कमी, और डिबेंचर्स होल्डर ने तो बोला भाई 30 जून तक मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ओके चलो, पहले तो क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 लाख, सॉरी फर्स्ट क्लियर द कैलसी. 2,30,000 इंटू 5%, कितना आ रहा है आपका, 11,500. सो 2,30,000 माइनस 11,500 जो लेस हो गया है. तो आपको डिबेंचर्स को क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करना है. ये क्या हुआ, व्हाट आई हैव डन इट, 2,30,000 1 2 3 4 into 5%, that is coming to 11,500. correct. So it is 2,30,000 minus 11,500. तो आपको पेमेंट करना है 2,18,500. सो क्रेडिटर्स को आप पेमेंट कर रहे हो 2,18,500. आपको पता है क्या है, 5% डिस्काउंट पे आप इसको पेमेंट कर रहे हैं. आपको याद दे के मैं लिख रहे 5%. बैंक ओवरड्राफ्ट में आपको कुछ भी नहीं बोला है. सो यू विल बी मेकिंग फुल बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट, दैट इज 1,16,000. सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज 1,16,000. डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो नॉट गिविंग यू एनीथिंग, तो डिबेंचर इज 2 lakhs. Now debenture is 2 lakhs. Now we will talk about the debenture interest. Now see this, this accounts are closed on 31st March. मार्च तक का ये इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेटेड है. मार्च के बाद आपका आएगा अप्रैल, मई, जून. 3 months का आपको एक्स्ट्रा डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ने बोला है. नाउ सी दे आर सेइंग इन द प्रॉब्लम व्हाट, डिबेंचर्स इंटरेस्ट हैव्स टू बी पे अप टू 30th June 2016. 31st मार्च को मैंने बैलेंस शीट क्लोज किया था, तो बैलेंस शीट के अंदर 31st मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट है. तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून 3 महीने का और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज 5% ऑन डिबेंचर्स. सो इट इज 2 lakhs 1 2 3 4 5 into 5%, that is coming to 10,000. so 10,000 divide by 12 multiply by 3. मैंने आपको 3 कैसे बताया आया, इट इज कमिंग, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 5 into 5
10%, that comes to 10,000. So 10,000 multiply by 12 divide by 3, that comes, क्या हो रहा है, 10,000 multiply by 3 divide by 12, that comes to 2,500. तो टोटल आप इंटरेस्ट का पेमेंट कितना करोगे, 5,000 plus 2,500. So debentures interest will be paying 7,500. ये 7,500 कैसा है आपका, 5,000 plus 2,500, मतलब 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा डिविडेंड जो कैलकुलेट करने बोला है. चलो अभी बाहर वालों का तो पूरा लाइबिलिटीज पेड हो गया है. अब प्रेफरेंस शेयर, अब उसके बाद क्या बोला था, आर्टिकल्स प्रोवाइडेड ऑन लिक्विडेशन आउट ऑफ सरप्लस रिमेनिंग पेमेंट ऑफ कॉस्ट आउटसाइडर्स, सब बाहर वालों को देने के बाद जब बचेगा तो मुझे 2 साल का जो एरियस डिविडेंड है वो पेमेंट करना पड़ेगा. सो प्रेफरेंस शेयर इज एट 10%. तो 12 लाख का 10% कितना हो रहा है, 1 1 2 3 4 5 into 12%, that is coming to, क्या किया मैंने, again we'll do it, 12 1 2 3 4 5 into 10%, the commission dividend interest is 10%, that is coming to 1,20,000. तो 1,20,000 एक साल का है तो 2 साल का हो जाएगा 2,40,000. So you will be writing here by preference dividend, by preference dividend, my preference dividend of last 2 years. ओके, कितने साल का हम डिविडेंड दे रहे हैं, 2 years. yes, that is coming to 2 लाख, एक साल का 1,20,000, 2 साल का 12 लाख. उसके बाद प्रॉब्लम क्या कह रहा है, और उसके बाद उसको 10% प्रीमियम देना है. तो मेरा एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज़ का है, तो प्रीमियम हो जाएगा तो 110 रुपीज़ हो जाएगा. मेरे टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 100, that comes to 1,20,000 multiply by 110, that is coming to 1,32,000. That is coming to 1,32,000. So by preference शेयर होल्डर्स को हम दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 13,20,000. 13,20,000 आपको कैसा आ रहा है, 12 lakhs कैसा आ रहा है आपका, 12 lakhs प्लस 10% प्रीमियम, दैट कम्स टू 1,20,000. तो टोटल आपका ऐसे आ जाएगा 1,32,000. नाउ अभी देखो, ऑलमोस्ट वी हैव पेड एवरीथिंग टू द आउटसाइडर. अब जो बचेगा वो हमारे शेयर होल्डर का होगा. अब यहाँ पे तो यही है 24,68,000. चलो माइनसिंग करो, 24,68,000 में से हमें हर एक चीज़ माइनस करेंगे. एक मिनट, हाँ आई थिंक कमीशन ऊपर चला गया. येस, लेट्स स्टार्ट माइनसिंग it. 24,68,000 माइनस 49,360 माइनस 7,640 माइनस 2,01,2,3,4,5 माइनस 7,500 माइनस 2,18,000 माइनस 1,16,000 माइनस 2,40,000 माइनस 13,20,000. अब बचा कितना मेरे पास, 3,09,500. कैसे आ रहा है, कहीं पे कुछ मिस्टेक किया मैंने, या ये डिस्काउंट वॉज इतना आ रहा था ना, बिकॉज मेरा 2,30,000
minus 11,500. So the total is 24,68,000 minus 49,49,360 minus 7640 minus 1 2 3 4 5 2 lakh minus 7,500 minus 2 lakh 18,500 minus 1 lakh 16,000 minus 2 lakh 40,000 minus 13 lakh 20,000. That comes to 3 lakh 9,000. So रेसिडुअल मतलब बचा कुचा पैसा इज 3,09,000. ये किसको दिया जाएगा? दिस विल बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो बाय returns to equity shareholders. Yes, by return to equity shareholders. ये क्या है हमारा? बैलेंस फिगर. करेक्ट ना? बचा कुचा है वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं. सो माई टोटल इज 24,68,000. Now students, this is full-fledged problem of 20 marks. अगर आप देखोगे this all was simple. ये सब सिंपल था, खाली एक नया आपको एक नया थिंग यहाँ पे लर्न करने मिला है. डिबेंचर्स was न्यू, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने बोला है. Yes, debentures was asked for the calculation. प्रेफरेंस शेयर में आपका कैलकुलेशन था. क्रेडिटर्स में ये तो सिंपल है, आपको आता ही है, 5% डिस्काउंट का था. और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में था. मैं कर रहा है, बाकी तो सब सिंपल था, आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना था. सो प्लीज़ प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में मिलेंगे. ओके, चलो टेक केयर, एंजॉय, लर्न एंड प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. मैं हर बार बोलती हूँ, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. ओके, चलो बाय.